So, welcome all to this wonderful seminar. Like I said, I'm Amitabh Karmakar. I represent a company called IIT Enterprises, which is India is Transforming Enterprises. My mobile number is already visible. If you guys are feel that is to get in touch with me, please get in touch with Akshay sir. I'm telling you before that, and you can get in touch with me also through my mobile number. This is my WhatsApp number. So today we're going to be talking about the startup opportunities. Make it or lose it. Okay. So now in the comment section, if you guys can write along with the presentation, so who wants to make it and who wants to lose it, right? So as far as I am concerned, I believe that everybody wants to make it. No one wants to lose it, right? So to start any kind of business, to start any kind of startup opportunities, you need to make sure that you understand your potential, what you're made of, how much things that you have inside you. Based on that, you can add more things which you are lacking, and you can leverage the good opportunities what you are having, right? So the very first thing, at the very first thing, you have got the inborn talent identified. So whatever talent that you have, let's say I've got a very good business skills, leadership skill, public speaking skill, convincing skill, academic skill, anything that if you have identified, then your first job is done. Okay, then you have to after identification, the potential has to be utilized. Unless and until you have not utilized your potential, you'll not be able to go very far. Okay, so once you identified the potential, it's very important to identify the potential, and then henceforth you need to utilize the potential. After utilizing the potential, you should be able to enjoy your work. So let's say I have got interest in psychology, I got interest in sales, I got interest in business. So if I am using that potential, I am using that, utilizing that potential to my good effect, I'll enjoy doing it, like the way I'm doing it. Okay, and if I enjoy doing my work, which is my bread and butter, then eventually I'll get happiness. Okay, so if I don't enjoy, I'll not get happiness, I'll be kind of low always. Okay, so if I am happy, my surrounding also will be happy. The people will try to get associated with me more in terms of getting happiness from me, hence I'll be successful. Okay, on the right hand side, so first I have explained the left hand side. On the right hand side, it's inborn talent which is unidentified. One side, let's say you, I'm talking to you, yeah. So let's say you have identified your potential. On the other hand side, I have not identified my potential. Okay, what will happen next? Your potential will be utilized. There's a very high chance you can utilize your potential, and my potential will be ignored because I don't know my potential, what I'm made of, what is my strength, what is my key areas of positiveness, what is my not so strength, what is my weaknesses. So if it is that get is ignored, I'll not be getting job satisfaction, I'll not be getting work satisfaction, I'll not be getting study satisfaction anywhere. Okay, so I'll be always dissatisfied in any terms, whether it's in studies, whether it's in a job, whether it's in business, whether it's in work. So for everything has to go well, you have to be satisfied. But if you ignored your potential, if you ignored your you didn't identify your inborn talent or inborn potential that you already have, then you'll get dissatisfaction. Hence a lot of diseases will take over. So number one, stress, anxiety, depression, which is very common these days, right? So hence the talent will get buried. So to reverse that thing, I think we should all fall in this first bracket. We should identify potential to start anything, to start any business, to start any studies, anything, to start any kind of startup. You should identify your potential, then you should use it, then you should enjoy the work gradually, then you'll get happiness, and you'll be successful in your own terms. All right, moving forward. So if you want to become a successful business person, as far as I am concerned, I've jotted down few points. These are the qualities you should have. Number one, you should have born leader, visionary leader. I'm not saying those who are not born leader cannot succeed, but if you're a born leader, if you have leadership in your blood, that is very much easier. So you should know at leadership quality 1 to 100, which level are you right now. You should have a visionary leader. Number two, you should have very long visualization. What does it mean? So let's say what will happen after 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. You should have that long-term point of view. Okay. Number three, you should have sky-high logical and analytical skill by birth.
your mathematics should be very good, your understanding of the situation should be very good. You should be able to solve the problem logically and analytically, not emotionally. Let's say I'll try and mix it up between Hindi and English, okay, so for better understanding. So let's say आपके जॉइंट बिजनेस है आपके पापा के साथ, और somewhat पापा is not that good at business, okay, but you are. तो पापा को आप उसमें एसोसिएट करके रखे हो ओनली बिकॉज ऑफ he's your dad. So but if he's not that good, he'll not be able to scale up your business. So आपको इमोशनल डिसीजन वहां पर नहीं लेना है. You have to think logically, you have to think analytically, hence you need to take the decision. Okay, moving on. Not the IQ but the emotional quotient and adversity quotient. Just I told you, your IQ, gone are the days when IQ was very very popular, but आजकल IQ से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला नहीं है. I am not saying IQ is not at all important. It is important, but if you have only IQ, not that great level of emotional quotient or supreme level of adversity quotient, you're not going to be going that far. Okay, I'll explain what is the emotional quotient mean. I'll take the example of MS Dhoni. आपको पता है MS Dhoni कौन है? Everybody knows, right? So MS Dhoni जब भी फील्ड पे होते हैं, उनको देख के पता ही नहीं चलता मैच में क्या चल रहा है. He is absolutely expressionless. इतने ठंडे, इतने काम कूल होते हैं वहां पे कि कुछ पता ही नहीं चलता अंदर उनसे दिमाग में क्या चल रहा है. भले इंडिया मैच हार रही है या जीत रही है, तो इमोशनली इतना स्ट्रांग है, इतना प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर. कोई भी मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आए उसमें बिल्कुल भी तहस नहस होते नहीं है. ही इज सो काम एंड कलेक्टिव. हेंस लुक एट हिज रिकॉर्ड्स. ही हैज won all the cups that anyone can aspire for. And the best of the captains didn't have that cup. World Cup, 20 over World Cup, the Test number 1 team, the IPLs, the Champions League, the Champions Trophy, everything he has, right, in his tenure. Okay, so emotionally you have to be very very strong. That means what? I understand myself very well. I understand you very well. You as in the person sitting in front of you. Okay, so what does it mean? Let's say I am dealing with a vendor, and the vendor is not that. Vendor is थोड़ा घुमाने की कोशिश कर रहा है हम लोग, थोड़ा सा घुमा रहा है. I'll be able to catch hold of that कि बंदा घुमा रहा है कि एक्चुअल में है. I should be able to read your mind. You means the vendor's mind. I'm talking to you, right? एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जितने भी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है उसमें सॉल्यूशन निकालने का कैपेसिटी कितना हाई है आपका. अगर बहुत ज्यादा हाई है तो देन इज वेल एंड गुड. MS धोनी इज अगेन राइट एग्जांपल. विराट कोहली इज अ वेरी राइट एग्जांपल. मैच को लास्ट बॉल तक, लास्ट ओवर तक लेके जाते हैं. जितना प्रेशर उतना अच्छा खेलता है. दे आर द चेस मास्टर. जितना आप चेस करने दोगे दे विल ब्लॉसम. Whereas the great batsman, the great Tendulkar, Sachin Tendulkar, प्रेशर आया डाउन, राइट. आप लीडरशिप दे दो, कैप्टनसी दे दो, इज गोना डाउन. The facts are telling that, right? He's a great batsman. He's the best batsman in the world. But जैसे प्रेशर आया, he was never a great chaser. Okay, so I hope I'm clear. IQ, we all know IQ, the intelligence quotient, the implementation quotient. We all know IQ, right? If you don't know, I'll explain. Let me repeat it one more time. These are things will make you. Remember the tagline: startup opportunities, make it or lose it. So these are the things that will make you. So make it or lose it. तो ये चीज आपको बनाने के लिए करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे. ओके, IQ is nothing but your implementation. एग्जाम्पल, हम लोग कभी बोलते हैं ये बच्चे का IQ जबरदस्त है, ये बंदा जबरदस्त IQ वाला बंदा है. कभी हम लोग बोलते हैं जब भी उस बंदे का नंबर्स आते हैं, अच्छा मार्क्स लेके आता है, तगड़े मार्क्स मिलते हैं. ही इज वेरी रिच. हु? मुकेश अंबानी. So Mukesh Ambani is very rich. Why? How do you know that? His bank balance, his property, his business, his wealth. अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैं बोलता हूँ मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत रिच हूँ. Will it suffice? No. तो IQ means the output, the implementation. अभी मैं बोलता हूँ मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत नॉलेज है. आई एम ए स्टूडेंट. एक्सक्यूज मी. आई एम ए स्टूडेंट, बहुत नॉलेज है. बट जैसे एग्जाम आता है मेरे हाथ पे ठंडे हो जाते हैं, मेरे को कुछ लिखना आता ही नहीं होता है. Right? So in that sense, I don't have a great IQ. IQ means implementation. Simple, right? So let's say, तो आप मुझे बोलोगे यार आप IQ आप बोल रहे हो कि इतना important नहीं है, तो this is important. I understand this is important, but it is not that important. अगर आपके पास IQ उतना लेवल पे नहीं है जितने लेवल पे इमोशनल क्वेश्चन एंड एडवर्सिटी क्वेश्चन लेवल पे है, तो आप IQ जिसका अच्छा है वो बंदे को आप हायर कर सकते हो. ओके, सो देन आप उनके थ्रू जॉब करवा सकते हो.
But if your emotional quotient agar low hai, adversary quotient bhi low hai, you cannot take a tactical decision, right? You will not be able to understand the psyche of the person sitting in front of you. Okay, moving forward. I hope I'm clear. Grasping power and catching power. You should be able to grasp and catch things very very quickly. सामने वाला क्या बोला फट करके आप दिमाग में यहाँ पे आ जाना चाहिए very fast. जितना grasping power का तगड़ा होगा, जितना strong होगा, उतनी जल्दी आप decision ले पाओगे. Will be able to succeed better. Terrific social quotient. आज के डेट में if I am not social, see the social media is booming these days, right? It's a big network, massive network. तो social media में अगर आपका अच्छा reach है, it means the soft social, which is the actual social media like Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn. These are the social sites that we all know, right? और जो फिजिकली है, आपके फ्रेंड सर्कल कितने हैं, आपके कम्युनिटी कितने हैं, आपने कितने बड़े नेटवर्क बिल्ड करके रखा हुआ है, नहीं तो आप बेचोगे किसको? तो आपके पास फॉलोअर्स होने चाहिए. पीपल शुड लव यू, राइट? पीपल शुड फॉलो यू, एडमायर यू कि आप कौन हो. तो उस जगह पे आपको वहां पे क्रिएट करना चाहिए सोशल कोशेंट. अगर आप में वो कैपेसिटी है कि लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर सको, लोगों को आप अपने तरफ खींच सको, दिस विल बी द ग्रेट थिंग दैट यू शुड हैव. सो दैट यू शुड हैव इनबॉर्न द सोशल कोशेंट. ओके, ट्रिमेंडस एंटरप्राइजिंग स्किल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से आई एम द एंटरप्रेन्योर, मैंने बिजनेस खोला है. ओके, मैंने 2 लेवल नीचे बंदों को रखा हुआ है. एक है मैनेजर, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव. आई शुड बी एबल टू डील हॉरिजॉन्टली. अभी मेरे कंपनी में किसी ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टर्स, आई शुड बी एबल टू डील देम एज वेल. मेरे जो दोस्त हैं, मेरा कॉम्पिटिटर है बट दोस्त भी है. एग्जांपल बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. दे आर कॉम्पिटिटर बट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो उनको कैसे हैंडल करना है, मीडिया कैसे हैंडल करना है. सो द एंटायर 360 डिग्री हैंडलिंग ऑफ द एंटरप्राइजिंग स्किल दैट यू शुड हैव इन बिल्ड. अंदर खून में होना चाहिए, सारी चीज खून में होना चाहिए. दैट आई एम टेलिंग यू. मैग्निफिसेंट फ्रॉड एंड क्राइम कैचिंग कैपेसिटी. कोई झोल झपाटा कर रहा है, कोई गफला कर रहा है, कोई किसी को फ्रॉड कर रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में या फिर बिजनेस में या फिर वेंडर्स में, आपको पता होना चाहिए. वहाँ पे कैचिंग कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए, पकड़ में आना चाहिए. अदरवाइज बहुत लोग आपको लूट के चले जाएंगे, राइट? You'll be landing nowhere. Impeccable learning tendency throughout the last day of your life, right? आपको लर्निंग एटीट्यूड करना है. मैंने रिमेंबर द गोल्डन रूल, थर्ड रूल जो मैंने कहा था, have the learning attitude in this 1 hour. आपको लर्निंग एटीट्यूड से रखना है. आई एम टॉकिंग टू यू अगेन. इफ एनी, सो आपको लर्निंग टेंडेंसी हमेशा रहना है कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखूं. भले एक छोटा सा वर्ड हो, इम्पेकेबल नया वर्ड है, सब लोग इतना यूज करते नहीं है. छोटा सा वर्ड हो, भले मेरी लर्निंग के जो कैपेसिटी है यहाँ पे, आपको एक एक करके ऐड होते जाना चाहिए. कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए. व्हाट आई एम टुडे, इट हैज टू बी गेटर देन और बेटर देन यस्टरडे. अभी एग्जांपल, अगर टुडे इज 2020, today is 3rd May. Okay, so exactly 3rd May 2019 को मैं कैसा था, if I recall that, तो जितना ज्यादा मेरे को बुद्धू लगेगा. एग्जांपल, अरे बाप रे, मैं 1 साल पहले इतना बुद्धू था. 2018 3rd में मैं इससे भी ज्यादा बुद्धू था. अगर इतना रैपिडली आपको बुद्धू बुद्धू लग रहा है 1 साल के अंदर अंदर, दैट मींस यू आर ग्रोइंग वेरी फास्ट. ओके, लेट्स से बाय 2021 3rd May को आपको लगेगा 2020 में मैं इतना बुद्धू था. तो दैट मींस यू हैव मल्टीफोल्ड योर knowledge and gatherings. Okay, so moving on. तो ये चीज आपको चाहिए होता है एक बिजनेस पर्सन के हिसाब से. आपको ऑलरेडी ये चीज चाहिए होता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, दीस आर द मेन बुलेट पॉइंट्स व्हिच आई, एज फार एज आई एम कंसर्न, ये सब चीज आपको इनबिल्ट खून में होना चाहिए. तब जाके दिस विल बी लाइक केक वर्क. अदरवाइज बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, सो लेट्स कम टू द स्टार्टअप आइडियाज दैट वी हैव हियर फॉर. सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपको क्या करना अच्छा लगता है? आपको सबसे ज्यादा क्या करना अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए जो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है. I'll give you 30 seconds. Please, comment section. I can see Rishu is saying that if I'm not a leader, that means I'm nothing. Not really, Rishu. I'll take care of that. Don't worry. Pooja Chaudhary says drawing. Geeta Sahu says study. Okay. 10 seconds more. Rishu, don't be upset. It'll be all right. If you're not a leader, that means you're not nothing. No. The answer is no.
Gloria Martis, public speaking, lovely. Anju Chaudhary, talking. Cricket खेलना, Pradeep Kumar, sketching, Ankit, pretty good. Aditya Desai, gym. Madhvi, people interaction, very good. Pooja Chaudhary, making friends, excellent. Rekha Chaudhary, cooking, reading, beautiful, lovely. तो आप अपने आप को देख रहे हो, एक बार जोर से ताली बजा दो फॉर द लवली थिंग. ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट. स्पोर्ट्स, दोस्तों पुराने. Okay, so coming back to this thing, thanks guys for this thing, and don't be upset. Those who are not leader, born leader, don't be upset. There are a lot of things for you, right? आपकी अगर एक क्वालिटी उतनी नहीं है, if you think, then दूसरी क्वालिटी आपकी अच्छी होगी 100%. Okay, so don't be upset. So just wait and watch. Don't jump into conclusion. Just wait and watch. Okay. So guys, let's come back to this. अभी आप याद रखो, okay, कि आपको क्या पसंद है. Next question, can you do that anytime? Gymming, sketching, drawing, कभी भी आपको पसंद है ये सब करना? Please, 10 seconds. Please guys, 10 seconds. आपको ये people interaction, cooking, reading, creativity, sports, gymming कभी भी कर सकते हो. Just write yes or no. कोई भी टाइम पे, रात के 10 बजे, सुबह के 1 बजे, सुबह के रात के 1 बजे, सुबह के 5 बजे, शाम को 5 बजे, कभी भी, एनी टाइम. इफ यू आर रेडी, कम ऑन गाइस, राइट यस और नो. ओके, यस 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 यस. ओनली कौस्तुभ राणे से नो. ओके, माधवी भट्ट से नो. ओके, ऑल सेड यस. केविन, प्रदीप, ग्लोरिया, आदित्य देसाई, रिशु, लवली रिशु, गुड टू सी यू. देवशी कर्माकर, yes, cool. Deepak, yes, definitely, fine. So most of the things are yes. Next question. Will you be doing it without getting paid? आपको इस चीज का पैसे नहीं मिलेंगे फिर भी आप करने के लिए रेडी हो? कम ऑन, yes or no? गेमिंग, स्केचिंग, जिमिंग, जो भी आप करते हो, जो भी आप करने का सोच रहे हो. आई थिंक कौस्तुभ ने ना बोला था. सो कौस्तुभ, थिंक अगेन, व्हाट वुड यू लाइक टू डू मोस्ट? ओके, अगर आपको पैसे नहीं मिलेंगे फिर भी आप रेडी हो करने के लिए. ओके, रेखा चौधरी, yes 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 yes, why not? Deepak, why not? Sakshi Bhatnagar, why not? तानिया सिंह, अंकित, भावेश ठाकुर, लवली, सब लोग कर रहे हैं. ओके, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट. सब लोग यस बोल रहे हैं मोस्टली. जिन जिन लोगों ने नो बोला है, आई थिंक आई कुड रिकलेक्ट कौस्तुभ्स नेम, दैट जिन जिन लोगों ने नो बोला है वो लोग एक बार फिर से सोचो कि आपको क्या करना पसंद है. नंबर 1, क्या आप कोई भी टाइम पे ये आप काम कर सकते हो? There is nothing called maybe, Priyanka. Nothing called maybe. Either it has to be yes or no. Just to get experience, no sir, it depends on my interest. Okay, Rishu. So Rishu, I think you just relax. I think you're a little bit tensed. Just relax. Nothing will happen. Just relax. You're very safe. Just relax. Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, जिन जिन लोगों ने मे बी नो बोला है वो लोग सोचो आप फिर से कि क्या करना अच्छा लगता है. जस्ट थिंक, क्या करना अच्छा लगता है. एनी टाइम यू आर रेडी एनी टाइम, एंड विदाउट गेटिंग पेड. कोई आपको पैसे नहीं देंगे. लेट्स से यू आर अ ग्रेट जिम इंस्ट्रक्टर, आपको जिम इंस्ट्रक्टर बनने के बाद पैसे नहीं देंगे. स्टिल यू विल बी डूइंग इट एनी टाइम एनी डे, राइट? यू हैव टू थिंक जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस. बाय भावेश ठाकुर. Now the last question, the biggest question. Is it solving a major problem of the society? Big question. Come on guys, say yes or no. आपके ड्राइंग करने से, आपके स्केचिंग करने से, आपका जिम करने से, आपके कुकिंग करने से क्या सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कोई भी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? लेट्स से पीपल इंटरेक्शन से सोसाइटी का मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है क्या? राइट? So I can see only Dr. Rajesh said definitely yes. Gloria said yes. Aditya said yes. Okay.
Ruchita Gupta said yes. Priyanka, you need to think. If it is no, Priyanka Narula, you need to think. If it is no, okay, so no isn't. Deepak, you need to think. Go back to again that same question. Kevin, yes. Kosturani, yes. If all fours are getting matched, okay, सारे प्रदीप कुमार नो, सारे चीज आई रिपीट अगेन फॉर यू गाइस. नंबर 1, कौन सा ऐसा चीज आपको अच्छा लगता है करना जो कि आप कोई भी टाइम में रेडी हो, कोई भी टाइम में, सुबह शाम रात को दोपहर, एनी टाइम यू आर रेडी. थर्ड, विदाउट गेटिंग पेड, आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो भी एट द सेम टाइम सोसाइटी का कोई मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहेगा. एग्जाम्पल डॉक्टर, इफ द डॉक्टर इज रेडी एनी टाइम 24/7 विदाउट गेटिंग पेड और सोसाइटी का प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो रहा है, देन यू गाइस आर इन द राइट प्रोफेशन. ओके, राइट. सो आप एक बार बताइए, जिन जिन लोगों ने नो बोला है, जैसे प्रदीप कुमार नो, उनके लिए एक और बार रिपीट करना है ये चीज. गाइस प्लीज आंसर मी. एक और बार रिपीट करना है, एक और बार ये एक्सरसाइज करना है. नो. Cool. So I'll repeat one more time. We're running short of time, so I'll repeat one more time. ऐसा कौन सा चीज है आप ढूंढो. Yes sir, we can give free work to the society. Not free work always better. Adit Jain, not free work. This is your profession. I'm talking about opening a startup, not charity. You should not start a charity before you run through your business. Okay? आपको पहले पैसे कमाने हैं, आपको पहले खुद का देखना है, उसके बाद दूसरों का हेल्प करना है. फ्लाइट में जो लोग ने ट्रैवल किया, ऑक्सीजन मास्क पहले पहनना चाहिए, उसके बाद बाकी का हेल्प करना चाहिए. खुद डूब रहे हो, बाकी को भी लेके मत डूबो. राइट. सो yes, the doctor should be the first person to ready in the treat to get ready to treat for free. So it's not about treating somebody free. Are you okay with that? पैसे नहीं मिलेंगे तो भी चलेगा क्या आपको? Then you'll get hell lot of money. So coming back to the presentation. So अगर ये चारों चीज सॉल्व हो गया, सॉरी गाइस, तो आपके पास इतने पैसे मिलेंगे, it'll be crazy, trust me. अभी आप बोलोगे यार ऑलरेडी डॉक्टर 10 लोग हैं, ऑलरेडी स्केचिंग में, प्रिंटिंग में, दी हेल लॉट ऑफ थिंग्स में सारे लोग हैं, ऑलरेडी कंपटीशन बैठा हुआ है. तो इफ देयर इज ह्यूज कंपटीशन, ये एक चीज बताइए, आई एम टॉकिंग टू यू, विराट कोहली हारा कि तेंदुलकर हारा? नो वन, राइट. दोनों जीत गए, बिकॉज सचिन अपने टाइम का हीरो था, विराट कोहली आज के टाइम का हीरो है. सलमान भी अपने उसके फैन फॉलोइंग है, ऋतिक रोशन का भी अपने फैन फॉलोइंग है, राइट. सो दे आर गिविंग वेरी गुड movies these days. Virat Kohli is playing very good cricket these days. Sorry guys. तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है फिर? अगर आपको सेम फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन, आपको करना क्या है? स्टिल यू लव योर पैशन, स्टिल यू लव योर एवरीथिंग दैट यू डू, तो आपको करना क्या है? आपको ये करना है, यू मस्ट बी एन एक्सपर्ट ऑफ योर ओन फील्ड, राइट. फिर आपको दूसरी कंपटीशन में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए. So by practicing, number 1, by practicing, repeat with me, I'm talking to you. You must be an expert on your own field. Repeat. Number 1, by practicing. Consistent practicing. You have to build consistency. Again practicing, and then you master it. I repeat. Practicing, consistency, again practicing, and then you master it gradually. Okay, so practice. Remember IQ. You have to work on implementation. ज्ञान बहुत ले लिया, बहुत सारा ज्ञान ले लिया, उससे कुछ होने वाला नहीं है. You have to practice it. You have to implement it. The more you practice, better it is for you. Moving on. तो बिजनेस दो तरह का होता है. सिंपल, एकदम सिंपल वे में समझाता हूं मैं. बिजनेस दो तरह का होता है. वन इज इंटेंजिबल, अदर वन इज टेंजिबल. अभी इंटेंजिबल, इफ यू कैन लेफ्ट साइड में सी, ये बंदे का नाम क्या है? बंदे का नाम क्या है यहाँ पे जो दिख रहा है लेफ्ट साइड में? यस, द टाइटैनिक हीरो, राइट. सो इंटेंजिबल में यहाँ पे क्या दिख रहा है? ही इज अ वेरी गुड पब्लिक स्पीकर. सो जहां पे कोई छू के आप देख नहीं सकते प्रोडक्ट को, दैट इज इंटेंजिबल. व्हाट वी कॉल इज अ सर्विस इंडस्ट्री. यू आर सर्विसिंग पीपल.
On the right hand side, you see the Ferrari car, the Apple phone. किसके पास Apple phone है? iPhone है किसके पास? Okay, cool. Ferrari गाड़ी किसके पास है? But everyone would like to have that Ferrari, right? तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, right? So one is product, other one is the service. छू के देख नहीं देख सकते, इसको छू के देख सकते हैं, राइट? ये इसके बाहर कुछ नहीं है. अभी आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, इसको हम लोग एक मॉडल देता हूं मैं, और ब्यूटीफुल इजीली समझाने के लिए एक मॉडल देता हूं मैं. ओके, हियर इन दिस यू कैन सी द प्रोडक्ट एंड सर्विस सेगमेंटेशन. इस चार के बाहर भी कुछ नहीं है. ओके, आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस, लेट्स आप काउंसलर हो, आप डॉक्टर हो, आप स्केच करते हो, आप कुछ सिखाते हो, आप कुछ खाना खिला के बना के खिलाते हो लोगों को, यू आर रनिंग अ रेस्टोरेंट, यू हैव गॉट अ फर्नीचर बिजनेस, एनीथिंग, सारे इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे. ओके, इसको आप गौर से देखो, सब कुछ साइड में कर दो, बाजू में कर दो, इसको गौर से देखो. ओके, कैन यू सी ए बी सी डी? ए बी सी डी. ए में है मारुति स्विफ्ट कार, बी में है द गॉर्जियस लैम्बोर्गिनी, सी में है टाटा नैनो, और डी में है शेवरोले क्रूज. गॉट इट? आई होप आई एम क्लियर. अगेन रिपीट. ए में है मारुति स्विफ्ट, बी में है गॉर्जियस लैम्बोर्गिनी, सी में है टाटा नैनो, डी में है क्रूज, शेवरोले क्रूज. ओके, ये जो लेफ्ट साइड का है, अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, लेफ्ट साइड का जो है, यहाँ पे ऊपर है हाई क्वालिटी, नीचे है लो क्वालिटी, यहाँ पे है इधर लो प्राइस, यहाँ पे हाई प्राइस. ओके, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, लो प्राइस, हाई प्राइस. ओके, तो ये जो है वो सा क्या है? आई एम आस्किंग यू, ये जो है क्या है? करेक्ट. सो हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस जो ए है, क्या आता है दिमाग में? मारुति स्विफ्ट. दिमाग में ये सब चीज आता है. मारुति स्विफ्ट का नाम, वो एकदम कम प्राइस में, अच्छे प्राइस में आपको अच्छे से क्वालिटी गाड़ी दे देगी, जहाँ पे माइलेज भी अच्छा है, हर जगह आपको रिपेयर भी मिल जाएगा, कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, बहुत स्मूथ कार है, ब्यूटीफुल कार है. ओके, राइट हैंड साइड में हाई क्वालिटी, हाई प्राइस, लैम्बोर्गिनी, जबरदस्त क्वालिटी, जबरदस्त प्राइस, राइट? सी, लो कैटेगरी, आई मीन लो क्वालिटी एंड लो प्राइस, टाटा नैनो, सेफ्टी भी नहीं है उतनी सारी, चली भी नहीं, और दाम भी बहुत कम है, भाव भी उसका बहुत कम है. ऑन द अदर हैंड डी, शेवरले क्रूज, 13-14 लाख का, 15 लाख का गाड़ी है, बट मेंटेनेंस इतना ज्यादा, इतना गंदा परफॉर्मेंस, इसलिए इंडिया में चला ही नहीं. इंडियंस के लिए एकदम बहुत ही बेकार कार है. ओके, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तो बहुत ज्यादा प्राइस है और यहाँ पे कम, आई मीन बहुत ज्यादा प्राइस है, यहाँ पे कम क्वालिटी है, राइट? अभी आपको डिसाइड करना है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, इस कौन सा सेगमेंट में यहाँ पे आएगा. ओके, मूविंग ऑन. एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं. आप कमेंट सेक्शन में बताइए. हाय हाय बी, परफेक्ट परफेक्ट. सुदीप्ता, लवली, करेक्ट. सो कमेंट सेक्शन में बताइए, टूथपेस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में पहले क्या आता है? टूथपेस्ट. जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, जल्दी टाइप करो. जल्दी टाइप करो. टूथपेस्ट मतलब क्या आता है दिमाग में? टूथपेस्ट, कोलगेट, परफेक्ट. मिनरल वाटर मतलब क्या आता है दिमाग में? मिनरल वाटर, क्विक. मिनरल वाटर, दिमाग में क्या आता है पहले? बिस्लरी, लवली. इंडियन कार मतलब क्या आता है दिमाग में? इंडियन कार, क्विक क्विक क्विक, यू हैव टू फास्ट, रैपिड. इंडियन कार, इंडियन कार, मारुति, परफेक्ट. परफेक्शनिस्ट ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट कौन है? बॉलीवुड का परफेक्शनिस्ट, some says Tata Motors but mostly Maruti. Not perfect, not Shahrukh Khan, Navda. Perfectionist, Shahrukh Khan is the king of romance, correct. Kaustubh, Amir Khan, perfect. ठंडा मतलब? परफेक्ट यश, परफेक्ट रुचिता, आमिर खान. प्रियंका, नॉट रणवीर.
नो, नॉट अमिताभ बच्चन, टीओसी चक्रवर्ती, नो. ठंडा मतलब, ठंडा मतलब, नो, नॉट आइसक्रीम. ड्रिंक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हॉट ड्रिंक्स, सॉरी कोल्ड ड्रिंक्स. फैंटा, नो. ठंडा मतलब बचपन का ऐड ऐड है, आमिर खान का ऐड है. ठंडा मतलब कोका कोला. परफेक्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट. परफेक्ट. सर्च इंजन, गूगल. परफेक्ट. सोशल मीडिया, परफेक्ट दीपक, विंडोज. सोशल मीडिया, लवली. सोशल मीडिया, फेसबुक. परफेक्ट दीपक. दीपक इज वेरी फास्ट. क्रिकेट, क्रिकेट का नाम सुनते पहले दिमाग में किसका नाम आता है? लवली आदित्य जैन, गूगल. सर्च इंजन, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप. परफेक्ट. क्रिकेट का नाम सुनते दिमाग में पहला क्या किसका नाम आता है? क्रिकेट. विराट. ओके. धोनी. ओके. लवली. रोहित. यार हम लोग मुंबई के यार. मुंबईचा मुलगा कोण? मुंबईचा मुलगा तेंडुलकर. लवली. एबीडी. ओके. ब्रिलियंट. फाइन. सो लास्ट बट नॉट लिस्ट, शहनशाह ऑफ बॉलीवुड. शहनशाह ऑफ बॉलीवुड, द स्टार ऑफ द मिलेनियम. सचिन, भावेश. लवली. स्टार ऑफ द मिलेनियम. स्टार ऑफ द मिलेनियम, कम ऑन क्विक. अमिताभ बच्चन. लवली. मूविंग फॉरवर्ड. अभी आपके प्रोडक्ट वहां पे सर्विस चूज करना, आपके कौन से सेगमेंट में आते हैं. ओके. अभी थोड़ा सा एक और एक्सरसाइज करते हैं फटाफट. आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. एक और एक्सरसाइज छोटा सा करते हैं. मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. कमेंट सेक्शन में आपको बताओ. कमेंट सेक्शन में लवली, सुदीप्ता, अमिताभ सर. परफेक्ट. 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 सो आपको मैं पूछूंगा कि ये जो सेगमेंट है, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ये जो सेगमेंट है जो ये ए बी सी डी में से कहां पे आएगा? ओके. ए बी सी डी में से ए मीन्स हाई क्वालिटी, लो प्राइस. बी मीन्स हाई क्वालिटी, हाई प्राइस. सी मीन्स लो क्वालिटी, लो प्राइस. डी मीन्स लो क्वालिटी बट हाई प्राइस. ये जो चीज बताऊंगा मैं कहां पे आएगा, जल्दी जल्दी. ओके. बिग बाजार, डीमार्ट, मोर मेगा स्टोर के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो कहां पे आएगा? ए बी सी डी. जल्दी. बिग बाजार मतलब कम दाम, कम भाव में अच्छी प्रोडक्ट. ए बी सी डी, बिग बाजार, डीमार्ट, मोर मेगा स्टोर. क्विक, क्विक गाइस. ए. परफेक्ट. स्नैक्स एट सिनेमा हॉल. स्नैक्स एट सिनेमा हॉल. लवली. सुदीप्ता मंडल, यू नीड टू थिंक. इट्स नॉट सी. स्नैक्स एट सिनेमा हॉल. सिनेमा हॉल जो थिएटर में हम लोग जाते हैं, वहां पे कुछ 150 रुपए का समोसा मिलता है. 150 रुपए का समोसा. परफेक्ट. डी. ब्यूटीफुल. डी. जिन जिन लोगों ने डी लिखा है, तालियां उन लोगों के लिए. ओके. फूड एट टूरिस्ट स्पॉट. टूरिस्ट स्पॉट में फूड एट टूरिस्ट स्पॉट. टूरिस्ट स्पॉट में चीजें काफी महंगी होती है, काफी महंगी होती है और क्वालिटी उतना कुछ अच्छा होता नहीं है. परफेक्ट. प्रियंका नरूला. डी. लवली. माधवी भट्ट. डी. लवली. गुची बैग. गुची बैग, बीएमडब्ल्यू, जारा. गुची बैग, बीएमडब्ल्यू, जारा. नो, नॉट सी. अदित. गुची बैग, बीएमडब्ल्यू, जारा. बी. परफेक्ट. हाई क्वालिटी, हाई प्राइस. ओके. टॉयज एट ट्रैफिक सिग्नल. ट्रैफिक सिग्नल में जितने भी टॉयज हैं वो आप कोई गाड़ी में लेके आते हो, वहां पे ट्रैफिक सिग्नल में जो टॉयज मिलते हैं एकदम कम भाव में मिलता है, घर लाते ही टूट जाता है. क्या होता है वो? सी. प्रदीप. ब्यूटीफुल प्रदीप. जबरदस्त. लवली. केविन, ग्लोरिया, यश, आदित्य, दीपक, सुदीप्ता. नॉट डी. अंजू. नॉट डी. ओके.
MI फोन, वैल्यू फॉर मनी, कहां पे आएगा? वैल्यू फॉर मनी, MI फोन, ABCD, MI फोन, लो क्वालिटी लो प्राइस, आई डोंट थिंक सो। MI फोन की क्वालिटी जबरदस्त है। पूजा ब्यूटीफुल, लवली पूजा, A, it's A, great quality with reasonable price, देखा लवली, ग्लोरिया लवली, शुभ ब्यूटीफुल। एप्पल आईफोन, एप्पल आईफोन, B, RG एंटरटेनमेंट, B, लवली, नो डियर नो, ग्रेट क्वालिटी ग्रेट प्राइस, रिशु सिंह नो, नॉट A, शुभांगी यादव लवली, सुदीप्ता मंडल B, लवली, केविन लवली, रामकृष्ण दत्ता excellent. Thanks guys, thanks for the reply, lovely, awesome participation, I love it. Okay, so moving forward, अभी कुछ कुछ बिजनेस के मैं टिप्स देता हूं आपको क्या करने चाहिए। ओके, बेसिक टिप्स। आपको कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी ऑलरेडी धंधे में हो, कोई भी बिजनेस में हो, आपको पहले समझना है कि कस्टमर इज गॉड। ये तो थंब रूल है बॉस। अगर क्लाइंट हैप्पी है तो हम लोग भी हैप्पी है। वो कुछ कुछ पैसा देके हम लोग को जाएगा, विल बी मोर देन हैप्पी। वो थोड़ा इरिटेट होके जाएगा, थोड़ा उसको लगेगा मैंने ज्यादा पैसा पे किया है, वो हम लोग को हजम नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, राइट। सेकेंड पॉइंट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, कस्टमर इज गॉड ऑफ ऑल गॉड्स। इसका मतलब क्या है? मैंने किसी को चीज दिया है, राइट। एग्जाम्पल, मैं बिग बाजार हूँ, मैंने एक रिटेलर को कोई भी चीज दिया है, उसके कस्टमर्स जो हम लोग हैं, हम लोग अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, ये बंदा भी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, राइट। अगर लेट्स से बिग बाजार में से मैंने एक 10 रुपए का माल उठाया और मैंने 100 रुपए में बेचा, जबकि बंदा खुद आकर बिग बाजार में से आके 10 रुपए में माल ले सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर आप होम डिलीवरी दे रहे हो, 100 रुपए चार्ज कर रहे हो, वो पैसा कभी कभी भी आपको हजम नहीं होगा। दे विल नॉट लाइक इट, दे विल नॉट ऑर्डर इट नेक्स्ट टाइम। तो कस्टमर्स के जो प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर दो, उसके बारे में भी सोचो आप। ओके, ऑलवेज थिंक हाउ द कस्टमर एंड विल गेट बेनिफिटेड। इवेंचुअली उनके कस्टमर भी बेनिफिट हो जाएंगे। उनका बेनिफिट पहले सोचो, हेंस अपना बेनिफिट अपने आप हो जाएगा। उनको आप थोड़ा सा ज्यादा पैसे लेने की सोचोगे, थोड़ा सा उनको इनजस्टिस कर दोगे, तो उतना अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। सो डोंट डू दैट, राइट। फर्स्ट थिंग, कस्टमर को भला कैसे होगा, वो खुश कैसे रहेगा, सिंपल। और उनके कस्टमर्स कैसे खुश रहेंगे, उसके हिसाब से आप रिवर्स कैलकुलेशन के हिसाब से प्लान बनाओ। ओके, देन प्रिपेयर द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। ओके, बी ए वेरी गुड लिसनर। जब भी आप कोई भी, दिस इज अ वेरी वेरी बिग, आई मीन ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। बी ए वेरी गुड लिसनर, डोंट टॉक इन बिटवीन। कभी कभार मैं कोई भी किटी पार्टी में या फिर कोई भी पार्टी में या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, 15-15 लोग एक साथ बोल रहे होते हैं, चिल्लम चाली कर रहे होते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता सुन कौन रहा होता है, राइट। सो डोंट टॉक इन बिटवीन। अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, जस्ट वेट फॉर दैट मौका, राइट। डोंट जंप इन, डोंट पोक योर नोज इन बिटवीन। कभी भी बीच में मत बोलो, भले वो बिजनेस हो, घर का हो, किधर भी हो। यू सीक परमिशन, देन यू स्पीक, यू गेट मोर वैल्यू, राइट। हर टाइम पे कंट्रीब्यूट करना अलाउड नहीं है, जरूरी नहीं है। ओके, सो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है यहाँ पे। बट डेस्परेशन कभी भी शो मत करना, ये ले लो प्रोडक्ट, ये ले लो, अरे ले लो, क्यों नहीं ले लो, अरे मेरा माल नहीं बिक रहा है। डेस्परेशन बिल्कुल नहीं दिखना है। यू हैव टू बी वेरी काम एंड पेशेंट, राइट। ऑलवेज बी कंसल्टेटिव सेलिंग। आप पहले कंसल्ट करो उसको। अभी कोई डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे है, राइट। डॉक्टर ये नहीं बोलता है ये ले लो टीबी का दवा, ये हार्ट ऑपरेशन करा लो, ये सर्जरी करा लो, ऐसा बोलता है क्या? नहीं बोलता, राइट। सो डॉक्टर क्या करता है, पहले डायग्नोसिस करता है, आपको पूछता है कि कहाँ दर्द है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे दुखता है, कैसे होता है, वो कंसल्ट करता है। उसके बाद ये दवा लेना ठीक हो जाएगा। पहले अपना माल बेचने की कोशिश नहीं करता है। सो डॉक्टर इज अ कंसल्टेंट, टिपिकल एग्जाम्पल। लॉयर इज अ कंसल्टेंट, सो यू हैव टू बी कंसल्टेंट टू बिकम अ वेरी गुड सेल्स पर्सन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, तो बिजनेस का बेसिक रूल आपको ये बनाना है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, उसका ब्लूप्रिंट आपको बनाना है कि ऐसे 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 होगा। I'll help you out in that। ये 1 घंटे में इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल टू मैनेज, राइट। उसके बाद आप कोचिंग मैनुअल तैयार कर लीजिए। ब्लूप्रिंट बना लिया, उसके बाद कोचिंग मैनुअल तैयार किया आपने, जहां पे आपको एक एक चीज का पूरा बारीकी से आपको पता है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, अकाउंट्स में क्या हो रहा है, सेल्स में क्या हो रहा है, इन्वेंटरी कितनी है, एवरीथिंग। देन यू बिल्ड अ प्रोसेस कि इसके बाद ये होगा, 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 स्टेप 1 2 3 4 5। देन रिपीट द प्रोसेस। यस, देन कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस। एग्जाम्पल, कोई मैकडोनल्ड्स जब भी आता है, इंडिया में जब भी आया था, तभी
एकदम से धाड़ करके सारा का सारा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया था. दे हैड एरे ऑफ प्रोडक्ट्स, दे हैव प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास. बट इंडिया में उन्होंने मैक आलू टिक्की बर्गर बनाया, इंडिया में बीफ बर्गर नहीं बनाया, राइट. वेयर इज गो टू जापान, जापान में सुशी बर्गर खिलाता है. तो उनका जो प्रोसेस एक बार सेट है, एक बार प्रोसेस सेट हो गया उसके बाद देयर इज नो प्रोसेस सेटिंग, देयर इज नो डिस्कशन. आपको खाली इंप्लीमेंट करते रहना पड़ेगा. तो अभी हर एक ब्रांच पे आपको मैकडोनल्ड बोलेगा ठीक है आप 2.5 करोड़ लाओ और यहाँ चालू कर दो, मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी लेना चालू कर दो आप, राइट. सो दीज आर थिंग्स दैट आई नीड टू फॉलो. ओके, नाउ फ्यू ऑफ द स्टार्टअप आइडियाज. ओके, मैंने बहुत सारे दिया हुआ है यहाँ पे, आप चाहिए तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए. आप सारा का सारा यहाँ पे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स. और यहाँ पे काफी सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैंने इतना सारा दे दिया आपको यहाँ पे, और भी बहुत सारे हैं. अकाउंटेंसी आप कर सकते हो, फूड ट्रैक कर सकते हो, आप पार्टी प्लानिंग कर सकते हो, इवेंट प्लानिंग कर सकते हो, वेबसाइट डिजाइनिंग कर सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे कैंपेन चलाना है वो कर सकते हो, फास्ट फूड रेस्टोरेंट कर सकते हो, सैलो बिजनेस कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर, गेम पार्लर, मोबाइल पर जो कस्टमाइज कवरिंग जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो. लड़कियों को काफी अच्छा लगता है वो चीज, काफी काफी ब्यूटीफुल चीज है. ओके, लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन सकते हो, आप गाइड बन सकते हो, मोमो बना के खिला सकते हो लोगों को, स्टेशनरी शॉप खोल सकते हो, फास्ट फूड रेस्टोरेंट कर सकते हो, एबेकस, आपका जो ज्ञान है पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो आप, राइट. आपके पैशन को ढूंढो आप, वो ढूंढो आप. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई इनबॉर्न टैलेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू गेट इनटू दिस. ओके, आई होप आप सब लोगों ने ये स्नैप ले लिया है. मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा जल्दी मुझे जाना पड़ेगा. इतना सब कुछ कर जाने के बाद भी अगर आपको लगता है मुझे भाई मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ यार, या फिर राइट प्रोफेशन में हो या नहीं हो, या फिर पापा का बिजनेस ज्वाइन करूँ फर्नीचर का इसका उसका, या फिर खुद ही स्टार्ट करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा बिजनेस करूँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ. एम आई रियली, अभी अक्षय सर ने बोला है, आपके सब्जेक्ट फैकल्टी ने बोला है कि ये सेमिनार अटेंड करना है, वेबिनार अटेंड करना है यहाँ पे, तो मैंने अटेंड कर लिया है. इज इट सो कि आई एम रियली मेंट फॉर जॉब और बिजनेस? ये बहुत बड़ा डाउट आ रहा है. मुझे जॉब बिजनेस करना ही नहीं है, आई एम फिट फॉर जॉब, या फिर मुझे बिजनेस करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, राइट. So in that case, I have got a scientific solutions for you. Yes, I'm talking to you. I've got a scientific solutions for you. जिसमें आपको ये चीजें पता चलेगा. ओके, क्या क्या चीजें पता चलेगा आपको? इनबॉर्न एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो पता चलेगा आपको. आपके अंदर क्या खूबियां भरा हुआ है पता चलेगा. कुछ कुछ चीजें बचपन में दिखाई नहीं देती, बड़ा होके उसका टैलेंट बाहर निकल के आता है, राइट. कोई कोई बहुत लेट अपने फील्ड में जमा, मतलब पैर रखता है, कदम रखता है अपने फील्ड पे, कोई कोई बहुत जल्दी रखता है, राइट. तो बट अपने हिसाब से सक्सेसफुल होते हैं वहां पे. आपके कौन से स्ट्रीम सब्जेक्ट चूज करना है. बीएमए स्टूडेंट स्पेसिफिकली मैं आपको आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की है इंजीनियरिंग में, लाइक अक्षय ऑलरेडी सेड, बट एमबीए किया है सेल्स एंड मार्केटिंग में. ना आई एम पर्सन साइकोलॉजी, तो पहले मैंने टेक्निकल पढ़ लिया, उसके बाद मैंने मैनेजमेंट पढ़ लिया. ना आई मीन आर्ट्स, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का हो गया, राइट. सो अभी भी आप स्टिल अनक्लियर हो कि यार मुझे करना क्या है, क्या चलना है. इसमें आपको ये पता चलेगा विच स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट टू बी चोजन. ओके, आपका लर्निंग कैपेसिटी कितना है, फिर है ना. लर्निंग कैपेसिटी मतलब आपके पास कितना भरने का ताकत है, कितना इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालने का ताकत है. और सेंसिटिविटी, लर्निंग सेंसिटिविटी मतलब क्या है, किस चीज में आप इंटरेस्ट रखते हो, किस चीज में आप दिलचस्पी रखते हो. ओके, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है. आपको एआई में इंटरेस्ट है, मशीन लर्निंग में, आपको पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, आपको डॉक्टरी में इंटरेस्ट है. डॉक्टरी में बहुत सारा स्ट्रीम्स है. कौन सा? होम्योपैथी, एलोपैथी, आपका सर्जरी, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिशियन, एवरीथिंग दैट हैव. तो कहाँ पे आपका एग्जैक्टली कहाँ पे फोकस है, राइट. पीपल स्किल बहुत लोगों के पास वहां पे होता है, बट एग्जैक्टली किस टाइप का पीपल, वेरी हाई क्वालिटी, जो इतने सारे एकदम इन बिल गेट्स टाइप के लोगों को आपको एड्रेस करना अच्छा लगता है, या फिर मॉडरेट लेवल को, या फिर उसके भी लो लेवल को जो थोड़ा सा पढ़ाई वहां पे नहीं किया कर पाए वहां पर. आपका इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पे पता चलता है कितने ऑलरेडी पैमाने पे है. रेशो, दिस इज फॉर यू. आप बोल रहे हो कि इनबॉर्न क्वालिटी मुझे नहीं है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा? तो द आंसर इज दिस. आपको ये साइंटिफिक सॉल्यूशंस, आपको इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी पता चलता है, एग्जिस्टिंग कितना है, इतना लेट से इतना होना चाहिए आपके पास, इतना है, इतना है, इतना इतना, या फिर जीरो है. जीरो तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो आपके पास है ही है, आपको पता नहीं है, राइट. विजुअलाइजेशन पावर, रिमेंबर मैंने ये बोला था कि बिजनेस चालू करने से पहले आपको ये चीज होना चाहिए इनबॉर्न. तो विजुअलाइजेशन पावर कितना लेवल पे है, सो दैट आप उसको ऐड करके उसको बढ़ा सकते हो. ऑलरेडी ग्रेट लेवल पे है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो. आपका लॉजिकल एनालिटिक स्किल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने. आपका आईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, आइडेंटिटी क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन यहाँ से पता चलता है. ग्रास्पिंग पावर, कैचिंग पावर पता चलता है यहाँ से. एंटरप्राइज स्किल पता चलता है यहाँ पे.
फ्रॉड क्राइम कैच करने का कैपेसिटी आप में है या नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको कि ये फ्रॉड कोई भी आपको मामू बना के जा सकता है या नहीं जा सकता, या फट करके आप पकड़ लेते हो। कोई भी आपको बटरिंग ऑयलिंग कर रहा है पकड़ सकते हो या फिर नहीं पकड़ सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी यहाँ पे पता चलता है। व्हाट डज इट मीन? कोई भी एग्रीमेंट में जाने से पहले यू हैव टू थिंक ट्वाइस, नॉट ट्वाइस, 20 टाइम्स। भले वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, भले वो मैरिज हो, भले वो वेंडर रिलेशनशिप हो, भले वो क्लाइंट हो, एनीथिंग, जाने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। अगर वो गड़बड़ हो गया तो कोई भी चीज आपको लंबा टाइम तक नहीं चलेगा, वहां पे ज्यादा लंबा नहीं चलेगा वहां पे, अगर कोई भी गड़बड़ वहां पे हो गया, राइट। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी किसके साथ, मेरे को पापा के साथ ज्वाइन करना चाहिए या मेरे को भाई के साथ ज्वाइन करना चाहिए, दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करना चाहिए, या फिर मैं अकेला किंग हूँ, यहाँ पे वो पता चलता है। ओके, सो बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, यार कैसे पता चलेगा, ये तो सारी चीज साइंटिफिक में कैसे पता चलेगा? थ्रू फिंगरप्रिंट्स। तो ये आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में एक बच्चा मम्मी के गोद में, आई मीन वूम में है, ऑलरेडी है पेट के अंदर। तो साइंस 13 से लेके 21st वीक के बीच में जब भी बच्चा रहता है मम्मी के गोद में, तभी उसका फिंगरप्रिंट्स, 10 उंगली के फिंगरप्रिंट्स और दिमाग का जो पैटर्न है, ये जो दिमाग का दिख रहा है आपको दिमाग, ये पैटर्न साइमल्टेनियसली डेवलप होता है। ओके, तो अगर अगर कोई भी चीज को मैं, ये सब चीज मैं अगर जानना चाहूंगा, तो मुझे बंदे का ब्रेन स्कैन करना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेन इज गिविंग द एंटायर सिग्नल। ब्रेन बोल रहा हाथ ऊपर करो तो मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, ब्रेन बोल रहा हाथ नीचे करो तो मैं नीचे कर रहा हूँ। ब्रेन ने जिस दिन सिग्नल देना बंद कर दिया, देन यू आर गॉन, राइट। तो ब्रेन इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ओके, तो अगर मैं, तो अल्टीमेटली मुझे ब्रेन को स्कैन करना है, इन शॉर्ट मुझे ब्रेन को स्कैन करना है, आपको ये सब चीजें पता होने के लिए। अभी ब्रेन स्कैन करने का मेडिकल साइंस में 2 ही तरीका है, एक है MRI, दूसरा है CT स्कैन। ओके, तो ये दोनों में आपको जो रिपोर्ट मिलेगा उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएगा, एकदम टेक्निकल मेडिकल जार्गन्स रहेगा जो कि डॉक्टर जो को समझ में आएगा, हम लोग जैसे लेमैन को नहीं समझ में आएगा वहां पर। तो बट साइंस हैज प्रूव्ड दैट कि सिंस ब्रेन का जो पैटर्न है, फिंगरप्रिंट्स का पैटर्न सेम मिलता जुलता है, सेम एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है, तो क्यों ना इसको डेवलप करके इसके बारे में पता लगाया जाए। तो काफी रिसर्च किया, लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला। उसके बाद ये फिंगरप्रिंट्स के थ्रू आपको ये सारी चीजें पता चलेगा। साइंस हैज ऑलरेडी प्रूवन दैट, ये बच्चा जो आप देख रहे हो, यस, सी द पिक्चर, गौर से देखो इसको, ये जो बच्चा आप देख रहे हो, ये बच्चे का ब्रेन नहीं है। So there is no brain, there is no fingerprints. फिंगरप्रिंट्स मतलब ये जो है, ये नहीं, ये नहीं, खाली इतना टिप। ओके, तो वो नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सारे बच्चे ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। तो आई एम रियली फील सॉरी फॉर दिस चाइल्ड। बट जिनका ब्रेन नहीं है उनका फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है। जो ब्रेन अंडर डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, तो फिर उनका फिंगरप्रिंट्स ही अंडर डेवलप्ड है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। So please ask questions. Please ask questions, please. Yes, guys. Any questions? So Rishu, I hope I have answered your question. That आपको you should, if you want to know your this inborn talent, this is absolutely personal stuff. I repeat, this is absolutely personal stuff. तो उसके चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा कि you have to contact Akshay sir for that. Eventually, you can reach out to me. Okay, but if it is a generic question, I'll be able to address that here. But any personal stuff, any personal questions, always welcome. Please ask question, guys. Yes, guys. No, sir, we need a guidance for startup. Okay, Shubhangi, I hope I have already given you a hell lot of things. You have noted down a lot of things. And please, this startup, I have given you a lot of ideas how you can start, what to do, what not to do. And then probably you can, if it is very, very personal and specific, then you can get in touch with me. My number is flashing. My website is also there. You can reach out to Akshay sir for that as well if you're a BMS student.
Thanks, Gloria. All doubts are cleared. Thank you for the wonderful webinar. Yes, I'm quite interested in opening startup shop. Many. Okay. Best of luck, Shuvangi. You can get in touch with me. My number is already flashing. So I'll just. This is my number. If you guys can see my screen. Okay. So I repeat, if you can guys want to note down my number, that is 97699666433. I repeat, 97699666433. Okay, so how can we find inborn talent by fingerprints? We know. So this is a very personal question, Pooja. I've already explained a little bit. So please get in touch with Akshay sir. Smart voice saying no, you cleared all my doubt. Thanks for that. Devashi Karmaka, thank you. Thank you for the wonderful webinar. Yes. Yes, guys. Okay, anybody else have any doubt, any questions for me? No, I guess. Yes, ma'am. Students, any more questions for anyone? Okay, repeat the number. 97699666433. 97699666433. Okay, Bhavesh Thakur is saying give some ideas in which we don't have to put money first. Bhavesh, remember my first thing. You need to identify what you would like to do the most at any given point of time without getting paid. You need to think on that. Don't go by the ideas, and you don't have to invest anything. But just think over it that again and again. This is very short period of time that I've given you time, only 5 seconds or 20 seconds, which is not sufficient, I guess. So please think at least 1 or 2 days that what is the only thing that you like to do the most, okay, without getting paid, anytime you're ready, and is it solving a major problem for the society? Then you'll get the answer by your own. Still you don't find it after 2 days, please give me a call. I'll be able to address it. I'll be happy to address it. Excellent webinar. Thank you, Mr. Karmakar. Pradeep Kumar. Fine. Okay. Guys, do let me know if you okay. So Pooja, I hope you got my number. Please write yes if you get my number. It's 97699666433. Jitul is saying excellent webinar. Thank you, Jitul. Thank you, Pradeep. Okay, thanks, Shivangi. No, thank you, sir. No. Okay. Cool. Yes, ma'am. Ma'am, Dr. Rupal, ma'am. Yes, sir. Tell me. Sorry for the intervention. We are having Dr. Palul ma'am with us and Vivek sir also with us. So with the kind words of them, we can conclude this webinar, and then Rupal ma'am, you can take it further. Sure, sir. Dr. Palul ma'am. Thank you so much, Akshay sir. Amitabh sir, it was a really enriching session for the students, because this is a very apt topic, because post-COVID, we only see India surviving and boosting its economy only by startups. Because as we see and as the contemplation in the world, that post-COVID from China, the base is going to move to India. So this is the most sunshine sector, and the strategies and the characteristics that you have guided the students with, I'm sure we have some in the making in the future. Thank you so much for the topic. Vivek sir? Thank you so much, ma'am. Thank you for this really informative session. We hope that our students will take some valuable information from this session and build up new startups. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, I would really appreciate the way you put forward the psychological characteristics needed to be a leader.
I mean, coming down to such basic examples of Sachin Tendulkar and Virat Kohli and Hrithik Roshan, I think the students were able to understand them more clearly. And this was actually a very enriching session where they would be all like how Dr. Parul ma'am said that India is the sunshine sector, and definitely the new generation is only going to look at startups as their career. They all want to be sustainable themselves, and all the characteristics that you put forward, the psychological, the personal character, the emotional quotient, and all that you put forward is really going to help them build their skills. I would honestly want to thank the BMS department, Dr. Vivek Wankhede sir, for getting you on board over here for the students. Akshay sir for helping us organize this beautiful session where there is so much of skills being imparted. And sir, I look forward to further discussions with you and get you involved with our students so that we can actually have more startups coming up. Thank you very much, sir. My pleasure, Thank you, ma'am. sir. I'll be happy to work with you. Yeah, so we'll be more than happy to do that. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Anything else, Akshay, or we can wind up? Thank you. I think Akshay sir has left. No problem. Thank Okay. you so much, sir. Thank Yeah. you. Thank you sir. so much, sir. Thank you, Sanket. I think we can wind up the session. Sanket? Thanks all the viewers, those who have joined, all the lovely students of BMS and everyone. Thanks very much. Thanks for participating so beautifully. I really Thank you. thank everyone from my bottom of my heart. Thank you so much. Thank you. Thank Bye-bye. you, sir. Thank you.